بحر قلزم کا نام سنتے ہی اللہ کا قہر اور عذاب الہی کا منظر نظروں میں آنے لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی دریا ہے جس دریا سے اللہ نے بنی اسرائیل کو سلامتی سے گزار دیا اور ظالموں کو اسی دریا میں غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور ظالم لپٹن یلو لیبل ٹی کا نیا بلینڈ لایا بیسٹ ٹیسٹ ایور جو زندگی جگا دے۔ سبروسو لایا فروزن پیک میں پہلی بار چکن کچوری۔ اسٹارٹ یور ٹیسٹ کی ایک نیو اسٹوری وتھ سبروسو چکن کچوری۔ سبروسو the chicken specialist. This Ramzan, Sabroso brings you a feast to remember. 70 rupees off on economy packs of crispy poppers, nuggets, pakora, samosa, kofta and seekh kebab. Have a Sabroso Ramzan. بیٹیاں جہاں بھی ہوں محبتوں سے ہر گھر کو اپنا بنا لیتی ہیں۔ اور آپ کا؟ ہمارا گھر نہیں، ہمارا تو صرف فرض ہی ہوتا ہے۔ مطلب ہمارا فرض ہوتا ہے آپ سب کی زندگی بھر حفاظت کرنا۔ ایسے ہی مغل سپریم نبھا رہا ہے اپنا فرض اور دے رہا ہے آپ کو زندگی بھر کی حفاظت، کیونکہ گھر چھوٹا بڑا نہیں، گھر محفوظ ہوتا ہے۔ اور جس مال میں سے اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فیصل ڈیجی بینک موبائل ایپ کے ذریعے عطیات دیں۔ ایپ پر موجود بیشتر چیریٹی اداروں میں سے کسی بھی ادارے کو تیز، محفوظ اور آسان طریقے سے عطیات دیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی اس نیک عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا سہارا بنیں اور ان کی دعاؤں سے مستفید ہوں۔ فیصل اسلامی، بڑھو یقین کے ساتھ۔ کتنا اچھا ہوتا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بن سکتا۔ کتنا اچھا ہوتا میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کر سکتی۔ زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے ابھی 042-111-448-464 پر کال کریں یا آن لائن ڈونیشن کے لیے donate.akhuwat.org.pk پر وزٹ کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ کسی آس کو ٹوٹنے نہ دیں۔ تو ٹرائی کرو اسپرائٹ لیمن منٹ کی ایکسٹرا تھرل جو کر دے روزے کی وو کو چل۔ براٹ یو بائی لیمن منٹ کی ایکسٹرا تھرل جو کر دے روزے کی وو کو چل۔ لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان۔ قبطی فرعون کے سپاہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے مظالم کا خاتمہ کس طرح فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے کس طرح نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی، نجومیوں کی پیشن گوئی اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود فرعون کیوں کر ناکام ہوا؟ یقیناً اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرعون کہ جس نے خدا کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کر کے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا،
जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिनको अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर भेजा और आपने मजलूमों की मसीहाई फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पेशनगोई की गई थी जो बनी इसराइल को फिरौन और फिरौनियों की गुलामी और मजालिम से आजाद कराएगा। रामसिस नामी फिरौन ने अपने आबाओ अजदाद की तरह बनी इसराइल पर निहायत बेदर्दी से मेहनत व मशक्कत के दुश्वार काम लाजिम किए थे, यानी पत्थरों की चट्टानें काट कर उठाते उठाते और फिरौन के हुक्म पर नए शहर बसाते बसाते बनी इसराइल के जिस्म बुरी तरह जख्मी हो गए थे। और अब फिरौन को ये तशवीश भी लाहिक हो गई थी कि अगर नजूमियों और काहिनों की पेशनगोइयों के मुताबिक बनी इसराइल आजाद हो गए तो फिरौनों की गुलामी कौन करेगा। सो उसने फैसला किया कि बनी इसराइल में जो लड़का होगा उसे उसके सिपाही कत्ल कर देंगे। यूं बनी इसराइल में कोई नबी पैदा नहीं होगा और उनकी अफरादी कुव्वत का भी खातिमा हो जाएगा। लेकिन नौमौलूद लड़कों की बड़ी तादाद को कत्ल कर देने के बाद रामसिस को यह भी खदशा हुआ कि जब बनी इसराइल के मर्द बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी खिदमत आखिर कौन करेगा। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि 1 साल बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल किया जाएगा और 1 साल इस सफाक अमल से बिल्कुल बाज रहा जाएगा। फिरौन बुनियादी तौर पर मिस्र के बादशाहों का एक टाइटल और उन्वान चला आ रहा। उस वक्त जो बादशाह था फिरौन, उसका नाम था रीमिसीस या रामसीस। नजूमियों ने फिरौन को पेशीन गोई की थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्त और इक़्तिदार के लिए ख़तरा होगा। तो लिहाजा उसने बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के के लिए ये हुक्म जारी कर दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अलबत्ता अगर किसी घर में बेटी पैदा हो तो उसे कत्ल न किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ घराने में, लेकिन आपकी वालदा ने आपको अल्लाह के सुपुर्द किया और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। जब फिरौन की बीवी आसिया ने अपनी तन्हाई बे औलादी की दुहाई फिरौन के सामने दी तो उसने आसिया की बात मान ली। इस मौके पर एक बूढ़े काहिन ने उठकर कहा, ऐ बादशाह, बनी इसराइल का वादा हम भरे बाजार में पूरा होता देख रहे हैं। ये वही बच्चा है जो आने वाले वक्त में आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। ये देखकर रामसिस परेशान हो गया और उसका जवान बेटा भी अपने बाप की जानिब बेचैनी के आलम में देखने लगा। फिरौन ने बुलंद आवाज में कहा, उन सिपाहियों को बुला लाओ जो बच्चों को कत्ल करने पर मामूर हैं। इस मौके पर मलिका आसिया ने मुदाखलत करते हुए रामसिस को इस मामले के हल के लिए एक तजवीज पेश की। चुनाचे 2 तश्तरियां मंगवाई गईं। एक तश्तरी में 2 चमकदार और पुरकशिश मोती थे, जबकि दूसरी में दहकते हुए अंगारे। बस इन दोनों तश्तरियों को कमसिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोती उठाने के बजाय दहकते हुए अंगारे उठा लिए। फीलिंग अलाइव, वो फीलिंग जो सेम ओल्ड को पोल्ड में बदल कर आती है। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। बेवक्त की भूख और सहरी में हो टाइम, फूड पैंडा से आए हर चीज एनी टाइम। इस रमजान सब्र का फल हम ले आएंगे। जो चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, फूड पैंडा करो। जिंदगी में हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश
एक घर ऐसा जो मुकम्मल हो, जिसमें हर सहूलत हो, जिसकी फैसिलिटीज रिसोर्ट स्टाइल हो, जिसमें प्ले एरियाज, वाटर फाउंटेन्स, स्विमिंग पूल्स हो। Gold Crest Views Community, award-winning Dubai-style 7-star resort-style जिंदगी अब इस्लामाबाद पाकिस्तान में। Gold Crest Views Community, आपकी जिंदगी का मुकम्मल एड्रेस। रामसेस और उसके दरबारियों के कमसिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर शुकूक के पेश नजर मलिका आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा के घर मुस्तकिल बुनियादों पर मुंतकिल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक बार फिर उन्हें रामसेस के गैज़ो गज़ब का सामना था। फिरौन की गैर मुनसिफाना हुकूमत में फिरौन के मंजूर नजर कुप्ती इसराइलियों से जबरदस्ती काम करवाते थे। एक राह गुजर पर एक इसराइली से जबरदस्ती बेगार लेने वाले एक कुप्ती की शिकायत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से की। मामले पर तल्ख कलामी बढ़ी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गैर दानिस्ता वो कुप्ती कत्ल हो गया। फिरौन और उसके हवारियों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि कुप्ती का कातिल यकीनन बनी इसराइल ही में से है। उस शख्स को ढूंढा जाने लगा जिसने कुप्ती को उसके अंजाम तक पहुंचाया। बावसूख ज़राए से रामसेस को पता चल चुका था कि कुप्ती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही हाथों मौत के मुंह में गया। और रामसेस के इरादे भांपकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर चले गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र छोड़ने की वजह ये थी कि उन्होंने किब्तियों में से एक को कत्ल कर दिया था। किब्ती वो कबीला था कि जिससे बादशाह फिरौन बनता था और वो बनी इसराइल पर जुल्म किया करते थे। लिहाजा एक किब्ती जो बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा था तो मजलूम के दिफा की खातिर और जालिम से मुजाहिमत की खातिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। और फिर ये ऐलान हुआ था कि जो भी उस किब्ती का कातिल है उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे सज़ा दी जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत की और मिस्र छोड़ दिया और वो 10 साल मदियन में रहे। और उस वक्त वो पानी वाला वाक़या पेश आया कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां एक तरफ खड़ी थीं और उस इलाके के लोग पानी ले रहे थे और उन्होंने देखा कि 2 मस्तूरात हैं कि जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। और उस वक्त जब उन्होंने उन मस्तूरात की मदद की तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस वाक़े के ज़रिए से ये एहतमाम फरमाया कि वो हज़रत शुएब की बेटियों में से एक का इज़्दिवाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ और 10 साल तक वो मदियन में मुकीम रहे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। फिरौन के बेटे के दौरे हुकूमत में मिस्रियों के हाथों इसराइलियों का इस्तेहसाल अपने उरूज पर पहुंच चुका था। Moses, where's Moses? इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला नबूवत और मौजज़ात अता फरमा चुके थे। चुनाचे 10 साल के बाद आप मदियन से दोबारा मिस्र पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की जानिब से अता होने वाले मौजज़ात का जिक्र किया और इसराइलियों को लेकर मिस्र से निकल जाने की इजाजत भी तलब की ताकि इसराइली अपनी सरजमीन में बसकर अपनी आजादाना जिंदगी गुजार सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हक गोई ने बादशाह को सीख पा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा मौजज़ात का जिक्र किया तो उसने कहा कि अगर वाकई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं तो अपनी निशानियां पेश करें। फिरौन के मुतालबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया। एक बनी इसराइली के हाथों अपने बादशाह को शिकस्त खाता देखकर दरबारियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को जादू का नाम दिया और फिर जादूगरी के मुकाबले की मंसूबाबंदी के बाद
दिन और वक्त तय किया गया और सल्तनत के बड़े बड़े और माहिर जादूगरों को जश्न के दिन इकट्ठा किया गया। जहां लोगों के हुजूम के सामने अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर गालिब किया। फिरौन को एक अल्लाह की इबादत और बनी इसराइल की आजादी पर आमादगी के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई निशानियां दिखाई, लेकिन फिरौन और उसकी कौम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान नहीं लाए। यहाँ तक कि अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अजाबों से भी दोचार किया। लेकिन ये हर अजाब के बाद उसे टालने की दरखास्त हजरत मूसा से करते और फिर अजाब के टलते ही वो उससे मुकर जाते। हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं अब्बू के। अब हर दिन यही फिक्र सवार रहती है कि इतने पैसे कहां से लाऊं। द किडनी सेंटर में इस वक्त सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से बेशतर इसका महंगा इलाज कराने से कासिर है। इस रमजान अपनी ज़कात और